f from closed interval ab to r be a continuous function. It means function f continuous everywhere in closed interval ab. That means value of function exists everywhere in closed interval ab. Not only that, but that limit also same. Let us divide. હવે આગળ બરાબર સ્ટડી કરીને બરાબર યાદ રાખવાની કોશિશ કરજો હા ભાઈ. Let us divide close interval AB into n sub intervals of equal length h. It means you are given close interval AB, but we are making some sub intervals of interval AB, taking equal length h. Then h will be what? You see, in interval A, B full length is what? B minus A. Correct? Last value minus first value. That is length of your interval. So this interval has length B minus A. And I want to divide it is in n sub intervals. So obviously n sub intervals of equal length h, then h should be b minus a upon n, because we have to divide in n parts for full length b minus a. So b minus a upon n, that is as good as h. All of you understand this h, how b minus a by n? Yes, sir. And now I say division point. जरा ऊपर जाने दे. Division point xi equal to a plus ih, where I 1, 2, 3 up to n. Now how does this? So we say when I put x, I is 1, so that read is x1. X1 should be a plus h. You know, first number is a, start from a. Now in first interval has length h. So what is the second point? Definitely a plus h. હું શું બોલું છું સમજમાં આવે છે ને? In interval AB is given and is divided in n parts with equal length h. તો h should be b minus a by n. એ તો સમજમાં આવી ગયું તમને. હવે શું Yes, કહું sir. છું? ડિવિઝન પોઈન્ટ એટલે શું? ઇન્ટરવલ a to b, a પછી x1 પછી x2 x3 ડોટ 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 કરીને છેલ્લે xn, હા, xn -1 અને પછી છેલ્લે શું આવે તમારું? b. આ ટાઈપનું વચ્ચેના બધા પોઈન્ટો છે. તો હાઉ યુ ફાઇન્ડ x1 x2 x3? તો દે આર ઓબે ધીસ રૂલ. કેવી રીતે? મેં તમને બતાવ્યું. x1 સપોઝ આઈ ફાઇન્ડ, તો x1 means I we put 1. x1 should be a plus 1h. 1h matlab h. So a plus h. So you start from a and h you add. The very next point is a plus h. That is I call x1. Follow it? Yes, sir. Now then after the next point, that means after a plus h, the next point will be a plus 2h, because each length, each sub interval has same length h. So now h hat, so it will be a plus 2h. It is I call x2. Then after third point, x3, it should be below a plus 3h. Similarly, x4, a plus 4h. College. In this way you proceed. So they are called division point. So xi will value what? A plus ih, where I 1, 2, 3 up to n. Now we consider one function Sn. This this function Sn is b minus a upon n into sigma f of xi. This we consider Sn. B minus a upon n into sigma f of xi. पंकज क्या हुआ? पता नहीं सर, एग्जिट हो गया। कैसे एग्जिट हो जाता है? Sn b minus a by n and sigma fxi, this function I consider. Then this function Sn is based on fx. fx पे ही डिपेंड करेगा वो.
अब आगे बढ़ो, इफ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ एस एन एग्जिस्ट, मान लो कि ये एस एन जो मैंने सपोज किया उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी जब एन टेंस टू इंफिनिटी, then this limit is called definite integral of fx on interval ab. N is denoted by symbolically integration sign, lower limit we write a, upper limit we write b, and fx dx, ऐसा तरीका आएगा। तो देखो एस एन को ध्यान से देख लो, b माइनस ए बाय एन, वो h था वो ही है, एंड फिर क्या हुआ यार पंकज तेरा पता नहीं कनेक्शन, सर, पावर ऑटोमेटिकली। नहीं है लैपटॉप पे, पावर नहीं है क्या है, कैसे एक्सिट हो नहीं जाता सर, है? पावरफुल है। नहीं तो राई को सौंप दे, राई को कंप्लीट करने दे। तो यार ऐसा थोड़ा होना चाहिए बार बार। हाँ तो क्या हुआ, एस एन जो लिया मैंने वो बेस ऑफ ऑन एफ एक्स, मतलब ये कि एस एन बराबर बी माइनस ए बाय एन, वो तो एच ही है, सिग्मा करके एफ ऑफ एक्स आई, वेर एक्स आई नो डिवीजन पॉइंट एक्स आई इक्वल टू ए प्लस आई एच, वन लिखोगे तो एक्स वन बराबर ए प्लस वन एच मिलेगा, टू लिखोगे तो ए प्लस टू एच होगा, ऐसा है। एक्स आई की वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन टू एन दिस वे। तो दैट फंक्शन एफ एक्स इज नाउ कन्वर्ट इन एफ ऑफ एक्स आई, तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई into outside number b minus a by n, if this function has limit n tends to infinity exist, then we say this particular limit is called definite integral of fx। ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो दैट मीन्स ऊपर जाने दे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आ गई फॉर्मूला देखो, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एस एन, मतलब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बी माइनस ए बाई एन सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम वन टू एन, एफ ऑफ एक्स आई की जगह आप ए प्लस आई एच लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स आई की मतलब ही ए प्लस आई एच है, और करके भी मैंने लिखा, जरा ऊपर जाने दे थोड़ा, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई, ऐसी तरह से याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बी माइनस ए बाई एन सिग्मा आई वन टू एन एफ ऑफ ए प्लस आई एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई। अभी आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया, तो इसीलिए मैंने फिगर ड्रॉ करके आपके सामने रखा है, बराबर ध्यान से देख लो। हाँ ये y बराबर एफ एक्स फंक्शन लिया है, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल ए बी, जरा कर्सर देके बताओ, बराबर ए की जगह देखो, ए नीचे है, हाँ ए और बी, ये इंटरवल ए बी है, उसके अंदर वो ग्राफ दो रहा है y इक्वल टू एफ एक्स का, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इट इज वन पीस कर्व, वन पीस कर्व आ गया बिटवीन ए एंड बी। अब मैंने बताया वो देखो कि एक के बाद दूसरा मैं इंटरवल ए बी को डिवाइड करने जा रहा हूं एन सब इंटरवल्स में इक्वल लेंथ लेके एच लेके, तो एक के बाद आएगा एक्स वन, मैंने एरो मार के नीचे बताया है एक्स वन, इसके बाद होगा एक्स टू, इसके बाद एक्स थ्री, तो इसी तरह मैं आगे बढ़ूं। और जरा ध्यान से देखो, एक आइट स्प्लिट मैंने लिया, आइट स्प्लिट, एक्स आई से एक्स आई प्लस वन, देख लो आप देख सकते हैं, और हर एक लेंथ जो है इंटरवल की वो एच रखी है, वो बताया मैंने। अब क्या करना है, मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड एरिया ऑफ रीजियन, एरिया ऑफ रीजियन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स along with line x equal to a, x equal to b and x axis. What I say, find the area bounded by curve. Figure देखो, bounded by curve y equal to fx, then x equal to a vertical line, x equal to b vertical line and x axis। तो पूरे का पूरा एरिया हमको चाहिए, ये अंदर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरे का पूरा एरिया हमको चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये पहला प्रश्न न्यूटन एंड लेबनिज को आया था कि ये कहाँ से कैसे वैल्यू निकलेंगे।
हम एरिया स्क्वायर का जानते हैं, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर करके ढूंढ निकालते हैं। रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी कर देते हैं। फिर अगर सर्कल है तो उसकी भी फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए। लेकिन ये तो कर्व है कोई, ये सर्कल भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो उसका एरिया कैसे निकालें? तो ये एरिया निकालने के लिए क्या किया उन लोगों ने, मान लो कि एक ए के टॉप पॉइंट देखो, ए से टॉप पॉइंट जरा कर्सर से बताओ, ए से टॉप पॉइंट ये रहा। अब यहां से पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ले फिगर, यहां आ गई मान लो। तो बी के ऊपर जाओ तो यहाँ रेक्टेंगल बनेगा। हाँ ये देखो बराबर, वहां मैंने बताया ए से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे ऐसा, तो ये हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन का एरिया बाकी बच गया। इसी तरह अगर बी का टॉप पॉइंट देखो, बी का टॉप पॉइंट, हाँ वहां से पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करके ए के साथ जोड़ दो तो वो भी रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा पोर्शन का एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये दिख रहा है हमको। तो ये दोनों टाइप के, ये नीचे वाला जो मैंने दौड़ के बताया वो लोअर रेक्टेंगल है, अपर वाला वो अपर रेक्टेंगल बोलेंगे। तो दोनों में से कोई भी रेक्टेंगल से आप एरिया नहीं निकाल सकोगे। अगर लोअर रेक्टेंगल से एरिया निकालने जाओगे तो थोड़ा बाकी बच जाएगा, और अपर रेक्टेंगल से एरिया निकालने जाओगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो ये इंटरवल ए बी है उसका हमने छोटा छोटा इंटरवल बना दिया, ना ना छोटा, मतलब मैंने उसका सम इंटरवल में पार्ट बना दिया, पीसीस कर दिया, ऐसा समझो। तो पहला इंटरवल देखो, पहला ए से x1 ऐसा, कर्सर से बताओ, कर्सर से ए पॉइंट पॉइंट के आगे पहुंच जाओ, ए नीचे 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 एक्स एक्सिस पे, हाँ ए से x1 ऐसा होगा। तो ए x1 के आगे मैंने एक पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये नानी अच्छी छोटी स्लिट आ गई। छोटी स्लिट दिख रही है कि नहीं, ए से x1 के तक। हाँ इसमें अगर हम लोअर रेक्टेंगल देखेंगे तो नो डाउट एरिया थोड़ा बाकी बच जाएगा, लेकिन पहले से बहुत कम बच जाएगा। और अपर रेक्टेंगल दौड़ेंगे तो एरिया तो आएगा ही एक्स्ट्रा, लेकिन थोड़ा कम आएगा। समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं क्या सोचूं, इससे भी छोटा स्लिट बना दो, मतलब कि आप लोगों ने इंटरवल ए बी का 100 पार्ट पाया बनाया हो, तो 100 के बजाय 1000 पार्ट बना दो, तो लेंथ कम आएगी कि नहीं? यस सर। हाँ लेंथ कम आएगी तो ऊपर एरिया का पोर्शन जो बचता है, जो एक्स्ट्रा आता है, वो भी कम हो जाएगा, है ना? ऐसा समझ लो। तो जैसे मैंने 100 में से 1000 बनाया तो और कम आ गया, 1000 में से 10,000 बना दूं पार्ट, तो बहुत छोटी स्लिट आएगी, दिखाई भी नहीं देगी आपको। तो यस सर। उसी, हाँ तो उसी टाइम पे तो एरिया कितना आएगा, बहुत ही कम। एक्स्ट्रा और या ज्यादा जो आता है वो क्या हो जाएगा, कम ही होगा। तो हम लोग यस। ने इनफाइनाइट तक इसका इंटरवल पा दिया। ए बी का मैंने मान लो के 1000 बनाया हो तो 10,000, 1 लाख, और बाद में तो मैंने क्या बोला, एन टेंस टू इनफाइनाइट पार्ट्स बना दिया। तभी तो वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा एरिया, जो बचता है और जो ज्यादा आता है वो एरिया बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। तो मतलब कि एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल या एरिया ऑफ अपर रेक्टेंगल और एरिया ऑफ कर्व, ऑल आर लुकिंग सेम, ऑल आर लुकिंग सेम। ऐसा हो सकता है ना? आप सोचो पहले, यस सर। एक दिमाग में लाओ कि ऐसा कर्व दिया है, उसका इंटरवल ए बी दिया है, अभी बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। अगर मैं लोअर रेक्टेंगल हूं तो बहुत बाकी बच जाता है, अपर रेक्टेंगल हूं तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अगर मैं उसकी छोटा इंटरवल बना दूं तो उसमें जो ये पोजीशन हमने देखी इंटरवल ए बी में, वो बहुत कम दिखाई देगी। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा उसका इंटरवल का विभाजन कर रहा हूं, मतलब इंटरवल जो ए बी है उसका इनफाइनाइट तक का मैं इंटरवल पाता हूं। तो तभी तो लेंथ बहुत कम आएगी, तभी आप देख भी नहीं पाओगे कि लोअर रेक्टेंगल कहाँ है, अपर रेक्टेंगल कहाँ है और फिगर वाला रेक्टेंगल कहाँ है, सब एक ही दिखाई देगा, है ना? तो उसका हर एक इंटरवल का हम एरिया निकाले तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं, बेस इंटू अल्टीट्यूड जो भी बोलो। तो मान लो कि यस। आइट आइट स्लिट वाली को देखो, आइट स्लिट के जगह ले जाओ,
अपना कर्सल, हाँ आइट स्लिट, ये एक जनरल ले लिया। तो आइट स्लिट की लेंथ मैंने नीचे बता दी, देखो एच, नीचे नीचे नीचे, हाँ ये एच लेंथ बताया, एक्सआई से एक्सआई प्लस वन की लेंथ कितनी, एच। अभी इसकी हाइट बताई मैंने, एच, हाइट एफ ऑफ एक्स आई बताया। तो प्रोडक्ट करो एच और एफ ऑफ एक्स आई का, तो ये एरिया ही हुआ कि नहीं रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। यस सर। तो ये जो मैंने यहाँ जो डिफाइन किया है, वहां पे आ जाओ, एच इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई, मतलब एच इंटू एफ एक्स आई लिया, और हर एक इंटरवल 1 से n तक मैंने लिया सिग्मा, सम करेंगे हर एक स्लिट का जो एरिया आएगा सबका सम हम्म। करेंगे, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं फिगर का। यस सर, आ जाएगा। पहले हम हर एक स्लिट का एक्स्ट्रा एरिया निकालेंगे, मान लो कि पहले स्लिट का तो एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन, प्लस दूसरी स्लिट का एच इंटू एफ ऑफ एक्स टू, तीसरी स्लिट का एच इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री, ये सब आ जाएगा। और वो इनफाइनाइट तक हम चलेंगे, पहले हम एन तक लेंगे और बाद में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट, मतलब कि इनफाइनाइट तक, तो वो पूरे का पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा। तो ये जो इन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये दूसरा कुछ नहीं है, ये जो फिगर मैंने बनाई के बताई आपको, वो उसका एरिया ही है। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ फिगर बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, यही एरिया है। एंड एरिया तो ऑलवेज फिक्स ही होगा, कोई भी रीजन हो, तो इसीलिए उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो आपको तो ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बी माइनस ए बाई एन सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आई एच, ये एक तरीका लिखना है। अगर आप मानो कि h बराबर b माइनस ए बाई एन है और n को इन्फिनिटी तरफ ले जाओ तो h तो जीरो ही जाएगा, b माइनस ए बाई इन्फिनिटी का मतलब जीरो होगा। तो उसको हम्म। दूसरी तरीके से लिमिट h टेंस टू जीरो, h इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला वाला सम फॉर्मूला है वो हम एल्जीब्रिक टाइप का सम आएगा इसमें यूज करेंगे, और दूसरी वाली फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा या तो ट्रिगो फंक्शन आएगा, तभी उसका यूज होने वाला है। तो जरा अब आगे बढ़े। यस सर। हाँ पेज नंबर आया 107, इसको सीधा करना पड़ेगा भाई, टेढ़ा है। यस, देखो अभी उसमें क्या लिखा है मैंने, वो आगे वाली ही बात है। इन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, बी इज कॉल्ड अपर लिमिट, एंड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एन फंक्शन एफ एक्स, ऐसा लिखा है। वो तो समझ में आ गया आपको। और उसको यस सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन इसीलिए बोलता है कि उसका आंसर फिक्स आएगा। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखा थे बराबर पहले, उसका यस सर। प्लस सी करते थे, कांस्टेंट लिखते थे ना, प्लस सी, सी हाँ। वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम आर्बिटरी कांस्टेंट। सी आर्बिट्री चेंज, कॉन्स्टेंट। हाँ सी चेंज होगा तो आंसर भी चेंज दिखने लगेगा, तभी वो हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपने निकाला, तो आप बोलोगे साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। कोई बोल सकता है साइन एक्स प्लस टू, साइन एक्स प्लस फाइव, साइन एक्स माइनस इलेवन, कोई भी लिख सकता है, हम्म। बराबर है। कोई ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए टू बी कॉस एक्स डी एक्स ओनली साइन एक्स, क्योंकि बाद में कोई भी कांस्टेंट करो ऐड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स ही आ जाता है। लेकिन जब यहाँ डेफिनेट इन आंसर करोगे ई टू बी एफ एक्स डी एक्स, तभी फिक्स आएगा, आंसर फिक्स आएगा, तो उसमें प्लस सी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बाद में डिस्कशन आएगा। अब जो मैंने अभी रूल बताया, फॉर्मूला बताई, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आता है। एक एक्सरसाइज पूरी के पूरी दी है, एक्सरसाइज 7.8,
इसमें क्या क्वेश्चन लिखा है कि फाइन इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, मतलब कि जो अभी अभी हमने फॉर्मूला बताई उसके मुताबिक इसका इंटीग्रेशन निकालो। फाइन इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स, ये पहला वाला प्रॉब्लम, एज अ लिमिट ऑफ सम। देखा बराबर? इसी यस टाइप सर। का एक सम हर एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, और वो भी 2 मार्क, तीन तीन 3 मार्क वाला आता जाता है। तो जरा ध्यान से पढ़िए कैसे किस तरह से करना है। सभी सम में एक ही स्टोरी है, एक ही ढब से लिखा जाएगा। तो ये जो मैंने पहले से लिखा है वो बराबर दिमाग में रखो। कौन सा फंक्शन है? हियर, हियर एफ एक्स इज एक्स है, बराबर है। यस। अब ए से बी, ये ए और बी तो कोई रियल नंबर ही होगा, वो समझ भी सकते हैं आप। तो हाँ ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ही होगा। सर। हाँ, ये एक पहली लाइन लिखना पड़ेगा आपको जब भी ये स्टार्ट करोगे तो। उसके बाद इंटरवल का हमने डिवीजन किया था, तो डिवाइडिंग क्लोज इंटरवल ए बी इंटू एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ एच, ऐसा करेंगे। जैसे हमने ओके। थियरी में दिखा, क्लोज इंटरवल ए बी को एन पार्ट में डिवाइड करेंगे विथ इक्वल लेंथ एच। तो व्हाट विल बी एच? वी श्योरली से बी माइनस ए अपॉन एन। यू एग्रीड और नॉट? यस सर, एग्री। डिवीजन पॉइंट्स एक्स आई इज ए प्लस आई एच, आई बराबर 1 2 3 अप टू एन, ये सभी पॉइंट्स जो मैंने चार तीन चार लाइन लिखी वो आपको याद रखनी पड़ेगी। हर एक सम में ये लिखा जाएगा। एफ एक्स फंक्शन अलग आएगा तो वो फंक्शन लिखेंगे। इसके बाद जो इंटरवल दिया गया है वो इंटरवल लिखना पड़ेगा। मान लो कि 2 3 इंटरवल दिया होता, तो मैं यहाँ डिवाइडिंग 2 3 इंटरवल इंटू एन सब इंटरवल करके क्या लिखते? 3 - 2/n, मतलब 1/n आता है h। तो उसके मुताबिक आगे बढ़ता। समझ में आ रहा है ना बराबर? हाँ सर। यस सर। हाँ, वो तो डिफरेंट डिफरेंट सब में आपको दिखाई देगा। चलो, तो अब हम क्या करें? एफ एफ एक्स आई ढूंढना है। अपनी फॉर्मूला याद रखो। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखा था? बी माइनस ए अपॉन एन इंटू सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ ए प्लस आई एच। वहां आई रनिंग फ्रॉम 1 to n है, तो उसके हिसाब से हमको एफ ऑफ एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स तुम्हारा फंक्शन है एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आई बराबर एक्स आई हुआ। यस सर। एक्स के जगह एक्स आई। अभी देखो एक्स आई की वैल्यू हमने निकाली है ए प्लस आई एच। ऊपर देखो पॉइंट्स, डिवीजन। यस सर, लास्ट वाला है। हाँ, लास्ट लाइन। तो वो लिख देंगे एक्स आई की जगह। देखो ऊपर जाने दे, एफ ऑफ एक्स आई बराबर ए प्लस आई एच हुआ। अभी एच भी निकाला है हमने, तो एच की जगह बी माइनस ए बाई एन आ गया, ये यस लिख सर। दिया। तो अभी अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स आई क्या हुआ? ए प्लस आई इंटू बी माइनस ए बाई एन। तो ये सब लिखना है। तो चलो अभी स्टार्ट करें। तो यहां तक का डिस्कशन हर एक सम में आने वाला है। हाँ, आप देखोगे दूसरे तीसरे सम में भी ऐसा ही आने वाला है। अब इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स में गिनने के लिए स्टार्ट करता हूं अपनी फॉर्मूला के हिसाब से। देखो, तो इक्वल टू क्या लिखा है? लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बी माइनस ए बाय एन इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई आई 1 to n, ये फॉर्मूला है अपनी, बराबर है। यस सर। अच्छा, उसको बढ़ाओ आगे। क्या होता है इक्वल टू करके? आगे जाने दे, खिसकाओ जरा। बस सर, इतना ही जा सकता है इमेज। क्यों नहीं जा सकते? एक लाइन आएगी नीचे, क्यों नहीं दिख रहा है? लिम, मान लोगे यही है। चलो, तो लिमिट एन टेंस में इंफिनिटी बी माइनस ए बाय एन हुआ। यस सर। ये तो कॉमन ही है। सिग्मा जी। में चेंज होगा। एफ ऑफ एक्स आई जो हमने ढूंढ निकाला है वो ही लिखा, देखो, ए प्लस आई इंटू बी माइनस ए अपॉन एन, बराबर है अभी। यस सर। चलो, तो अब नेक्स्ट पेज पे जाओ, 108 पेज। उसको भी सीधा करना पड़ेगा। 2 3 पेज ऐसा आया है, बाकी सब फिर से सीधा ही आएगा। सेव। रोटेट कर दे। 108 पेज, नॉट हाँ 9। सर, सबको एक साथ सेव कर लेता हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, कितना पेज तक है देखो, शायद बस सर इतना ही है, फिर अगला हाँ सीधे है। हाँ, बस बस, तो वो दोनों को सेट कर लो।
बराबर है। देखो यहाँ से बाकी है अपना, तो वो सिग्मा को ओपन करते हैं हम, सिग्मा अंदर ले जाते हैं, सिग्मा ऑफ ए प्लस आई इंटू बी माइनस ए अपॉन एन था अपनी लाइन में। तो अगला तो स्टेप तो वैसा ही लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी माइनस ए बाय एन, और नेक्स्ट इन कर्ली ब्रैकेट व्हेन यू टेक सिग्मा इनसाइड, तो सिग्मा ऑफ ए आएगा पहला प्लस सिग्मा आई इंटू बी माइनस ए बाय एन। रिमेंबर सिग्मा की लिमिट आई वन से एन है, याद रखने का है। बोलो समझ ओके में आया? अच्छा, इसके बाद वाला स्टेप बी माइनस ए बाय एन बाहर ही रहेगा। अब सिग्मा ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए तो कांस्टेंट है, ए में कहाँ पे आई भी नहीं लगा है, जहां यस आई सर। लगेगा वहीं वेरीज होगा, तो ए को बाहर निकाल दो और सिग्मा वन ही समझ लो। सिग्मा यस वन सर। एंड सिग्मा रनिंग वन टू एन, तो वन प्लस एन टाइम आएगा ना, तो वो ए यस सर। इंटू एन होगा। ए इंटू एन समझ में आया बराबर? चलो यस दूसरी सर। दूसरी टर्म में बी माइनस ए बाय एन कॉन्स्टेंट है, आई नहीं है इसमें, आई बाहर है, तो वो बी माइनस ए बाय एन बाहर निकाल दिया, तो सिग्मा यस आई हुआ। सिग्मा आई का मतलब सिग्मा एन, यस सर। ऊपर लास्ट वैल्यू आई की एन है, तो सिग्मा एन हम्म। करके फॉर्मूला है आपको, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, वो ही लिखना है। चलो हो गया बराबर, ध्यान में। ओके। अब यस फिर सर। यस से सर। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़े, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, बाहर वाला नंबर अंदर प्रोडक्ट कर देता हूं, बी माइनस ए बाय एन करके कर ली ब्रैकेट था, तो पहली टर्म से प्रोडक्ट होगा तो एन कट हो जाएगा, देखो। हाँ, तो बी माइनस ए इंटू ए हुआ, ये पहली वाली टर्म आ गई, बराबर समझ लो। अभी आगे नहीं बढ़ने का, वहीं पे रुको रुको, बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो बाहर वाला प्रोडक्ट अंदर से टर्म से कर रहा हूं मैं, तो पहली टर्म आएगी बी माइनस ए बाय एन, समझ में आया कि नहीं? प्लस यस। फिर से लिमिट दूसरी टर्म पे लगाओ, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, बाहर वाला बी माइनस ए बाय एन और अंदर वाला बी माइनस ए बाय एन, दोनों का प्रोडक्ट मिला के बी माइनस ए होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होगा क्या नहीं? यस सर होगा। अब n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ n टेंस टू इंफिनिटी है, तो नीचे एन स्क्वायर आ गया है, तो नीचे वाला एन स्क्वायर ऊपर में कोई भी जगह एन स्क्वायर आएगा तभी कैंसिल होगा। तो मैंने क्या किया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू में n तो है ही बाहर, n प्लस वन यस में सर। से एक n निकाल दिया और एन स्क्वायर कर दिया, तो n प्लस वन हम्म। वाली टर्म वन प्लस वन बाई एन होगी। ये तो लिमिट में कहा, बहुत टाइम आपने किया होगा। तो यस आप सर। देखो एन स्क्वायर को कट करके वैल्यू लिख देते हैं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, तो पहले में तो एन है ही नहीं, तो वो तो कांस्टेंट की कांस्टेंट लिमिट आएगी, पहली टर्म बी माइनस ए इंटू ए। यस सर। अब दूसरी वाली टर्म देखो, एन स्क्वायर कट हो गया, अब हम्म। एन टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो वहां पे वन अपॉन एन है, वो जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो का यस मतलब सर। वन हुआ, वन बाई टू एन बी माइनस ए होल स्क्वायर। अभी ये बोलना नहीं चाहिए, आपको पता चलना चाहिए, है ना, नहीं बराबर? लिमिट का ही प्रॉब्लम यस हो सर। रहा है। अब हाँ बोलो, सर। अब हाँ, हम्म। अब मैंने टू एलसीएम निकाल दिया, दोनों में से टू एलसीएम, टू इंटू करके मैंने प्रोडक्ट किया, टू बी ए माइनस टू ए स्क्वायर ओपन करते जाओ, और दूसरे में से बी स्क्वायर माइनस टू बी ए यस प्लस ए सर। स्क्वायर आएगा, टू बी ए कट हो गया, हम्म। और बी स्क्वायर एंड माइनस टू ए स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड करो तो माइनस ए स्क्वायर बचेगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू हुआ। बोलो यस सर। बराबर समझ, क्लियर। ये आंसर हाँ आ गया उसका, उसका आंसर आया ये। समझ यस। में आया? फिर से, हाँ, हाँ फिर सर। से एक दफे आप सब देख लो, मैं आ रहा हूँ, है, जरा बराबर ध्यान से देख लो।
पहले वाला सम देखा कि नहीं बराबर है? यस सर, देखा। समझ में आया बराबर? ध्यान से, मैं पहले वाले का ही बात कर रहा था। अब हम दूसरा सम देखें तो ये दूसरे में नोन फिगर है, उसमें अननोन था, बराबर है। ओके अब हाँ, क्या लिखा है पढ़ो बराबर। इंटीग्रेशन 0 से 5 x+1 dx। तो जो लाइन मैंने लिखी है वो कॉमन ही लाइन आई है, बराबर पढ़ के देख लो क्या आया है। मैंने कैसे क्या क्या लिखा है, फंक्शन एफ एक्स बराबर करके मैंने लिखा है x+1, x+1 ऑब्वियसली इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 5। एग्रीड? यस सर। ऑलवेज पोलिनोमियल फंक्शन, हमेशा याद रखो, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। हाँ, तो हियर इज यस। fx equal to x+1 is continuous function on close interval 0 5। लोअर लिमिट पहला लिखना है, अपर लिमिट बाद में लिखना है, इंटरवल में आपको पता ही है। अब हम डिवाइड करेंगे इंटरवल 0 5 से एंड सब इंटरवल में। तो देखो मैंने लिखी वो लाइन, पढ़ो बराबर ध्यान से। क्या लिखा है, dividing close interval 0 5 into n sub intervals of equal length h, then h equal to फॉर्मूला याद है ना, b माइनस ए बाय एन। यहाँ b 5 है, माइनस ए का यस सर। मतलब 0 अपॉन 0 एन। हाँ, तो h का आई बाई मतलब एन आ जाएगा। 5 बाय एन आया। अब हाँ डिवीजन सर। पॉइंट्स लिखने जाओ तो xi बराबर a प्लस आई एच है। तो एक ही जगह क्या थी यहाँ, ए बी का मतलब इंटरवल ए बी, तो एक ही जगह 0 था तो 0 0 लिखा मैंने, और प्लस बी की आई, जगह 5। और एच की वैल्यू 5 बाय एन। अभी हाँ अभी एच चीना है, तो ऐसी ए। तरह 5 आई बाय एन आया। बराबर समझ में आया गया सबको? हाँ सर आ गया। अब एफ एक्स बराबर x+1 है, तो एफ ऑफ एक्स आई क्या लिखेंगे, xi+1, एक्स की जगह xi, बस दूसरा कुछ नहीं। अभी xi की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे, ऊपर ही देखो एक ही पे लाइन में। तो xi में लिखा है 5i बाय एन आया, तो 5i बाय एन प्लस 1 हुआ एफ ऑफ एक्स आई। ये जरूरी तुम पहले ढूंढनी पड़ेगी, बाद में आप कैलकुलेट करके निकाल दोगे। बराबर आ गया समझ में? तो फिर से यस बोलता सर। हूँ, फिर से समझ लो। फंक्शन जो है अपना एफ एक्स बराबर x+1, वो कंटिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल 0 से 5 तक। अभी यस सर। जीरो इंटरवल 0 से 5 का जो इंटरवल है, इसका एन सब इंटरवल्स में हम डिवाइड करेंगे इक्वल लेंथ एच लेके। तो इसीलिए एच की वैल्यू हो गई 5 माइनस 0 बाई एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय लोअर एन। लिमिट। हाँ, ऐसा होना चाहिए 5 बाई एन। एंड डिवीजन पॉइंट एक्स आई क्या लिखेंगे, ए प्लस आई एच। वो फॉर्मूला ही स्टैंडर्ड है, एक की जगह जो अपनी वैल्यू यहाँ है वो ही लिखेंगे 0, और एच की तो अभी अभी निकाला 5 बाई एन। तो 5 आई बाई एन ये एक्स आई की वैल्यू आई। अब हम फिर से आगे बढ़े, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, तो x+1 है। मतलब ये यस हुआ कि एफ ऑफ एक्स आई लिखोगे तो xi+1 लिखना पड़ेगा, और और बाद एक्स आई में अपने xi निकाले। वैल्यू लिखा दी, हाँ निकाल दी है, वो लिख दो 5i बाई एन प्लस 1। हो गया बराबर और सब? ये प्लस आई। यस हाँ। सर। अब यस हम सर। अब हम आगे बढ़े कैलकुलेशन के लिए, जरा ऊपर जाने दे। 0 से 5x+1 dx, तो इक्वल टू हुआ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी। और अभी जो फॉर्मूला है वो ही लिखा है मैंने, b हाँ बी माइनस ए माइनस बाई एन ए बाई सिग्मा एन। एफ ऑफ एक्स आई। सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई और सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आई है, जो भी बोलो वो लिखना पड़ेगा। बराबर है, I1 to N। हाँ सर। अब हाँ, अब आगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 5 माइनस 0 बाई एन हुआ सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई। वो मैंने कैलकुलेट करके ऊपर ही बताई है 5i बाई एन प्लस 1, तो वो लिख दिया 5i बाई एन प्लस 1। अब उसका नेक्स्ट पेज ओपन करो, 109 पेज। तो वो 109 वाला जो पेज है, इसमें उसकी कैलकुलेशन लिखी है। तो पहले वो ऊपर वाला भी चाहिए थोड़ा। हाँ, कैसे करेंगे, 5, हाँ जरा थोड़ा सा ऊपर ले
नहीं आता है। हाँ पेज आ अलग है जाएगा ना। सर। आ जाएगा तो मैं क्या बोलूँ, उसका प्रोडक्ट करके देखना है, क्योंकि यहाँ हाँ सर। डायरेक्ट मैंने अभी उसमें हुआ क्या है। अरे अरे यार ये तो दूसरी निकाल दी अपनी जेडब्ल्यू वाली। नहीं ये 108 चाहिए, 10 हो गया, 108 वाला लास्ट लाइन देखनी पड़ेगी। नहीं ये इसके बाद वाला है, इसके बाद वाला है। ये अरे ये तो था, हंड्रेड क्लियर ही एंड था। एट है, 7 वाला निकला। डायरेक्ट 10 आ जाता है भाई। चलो कोई बात नहीं, चलो रहने दे रहने दे, चलो अभी आगे चल। देखो वहां 5 - 0/n आया था, है ना। तो वो मैं 5/n अंदर सिग्मा को अंदर ले जाता हूं और सिग्मा ओपन करता हूं। तो देखो 5/n है और सिग्मा 5i/n। तो 5/n और 5/n दोनों मिला दो तो 25/n² हुआ, एन सिग्मा आई। बोलो पहला टर्म पता चला बराबर कैसे आया। बाहर हाँ सर। 5 - 0/n का मतलब 5/n था ही, और सिग्मा 5i/n+1 वो है ना, तो उसके लिए मैं अंदर प्रोडक्ट करने जा रहा हूं। तो 5/n बाहर निकाल दो तो 25/n² एंड सिग्मा ओवर आई 1 to n प्लस बाहर बाहर का 5/n दूसरी टर्म में भी प्रोडक्ट होगा, तो 5/n × सिग्मा 1, है ना। तो अब यस आगे बढ़े, सर। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 25/n² एंड सिग्मा आई की फॉर्मूला बोलो। सिग्मा आई का मतलब सिग्मा एन, Yes, एन sir. इंटू Into एन n प्लस plus वन 1 by बाई 2. टू और उधर 5/n एंड सिग्मा वन का मतलब एन, And 1+1+ एन तक जाओगे ने तो एन आएगा। अब एन एन उधर कट हो गया तो मतलब कि लास्ट टर्म 5 कांस्टेंट हो गया। अभी yes. दूसरी पहली वाली टर्म में देखें, नीचे n² है तो ऊपर से n² होना ही चाहिए। तो Hmm. दूसरा ब्रैकेट में से n कॉमन निकाल के n² इंटू ब्रैकेट 1+1/n बना दिया। अब देखो n² कट हो जाएगा। अब मैं n टेंस टू इंफिनिटी लिखने जाऊंगा ने तो 1/n 0 हो गया। Yes, sir. तो 1+0 1, बाहर 25/2 है +5, तो 25/2 +5 आंसर क्या आया, 35. 35/2। बहुत आवाज आ रही है। अच्छा देखो 35/2 इज द आंसर ऑफ द सेकंड सम, मींस डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 5 ऑफ x+1 इक्वल टू 35/2। अब आप सोचने लगोगे कि इसी तरह से जो सम करेंगे हम इन डेफिनेट इंटीग्रेशन तो बहुत टाइम लेगा, ऐसा लग रहा है ना। हाँ सर, अपने वो सब निकाल Sir. रहे हैं वो सब। हाँ तो अभी मैं जो, आप बॉल पेन और पेज लो या तो नोटबुक लो, मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो देखो, समझने की जरूरत है एक इसमें। मिनट सर, बात नहीं। चलो 0 से 5 एन x+1 dx वो अपना फंक्शन है, जो जो क्वेश्चन है वो ही लिखो। 0 से 5 ब्रैकेट में x+1 dx, बोलो लिख दिया क्वेश्चन। हाँ अच्छा अभी जो हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला वो मेथड को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। ये जो कैलकुलेशन है वो हम फर्स्ट एक्सरसाइज के पूर्ति ही रखेंगे, इसके बाद जो आएगा वो डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा। वो भी न्यूटन एंड लाइबनिज ने ही रूल बना के दिया है, तो वो उसके हिसाब से करोगे। तो ये आपको वेरीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूं अभी। तो देखो जो इंटीग्रेशन 0 से 5 ऑफ x+1 करना है, तो पहले हम जो इंटीग्रेशन करते थे ना, मान लो कि लिमिट नहीं है तो हम कैसे करते थे वैसा ही आंसर लाना है। पहला इनडेफिनेट के फॉर्म में ला दो, तो आप लिखोगे x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, x² बाई 2 प्लस 1 का x, तो x² बाई 2 प्लस x लिख के ब्रैकेट बना दो। ब्रैकेट के नीचे 0 लिखो, नीचे लिमिट 0 लिखो, ऊपर 5 लिखो। हो गया हिस्सा, लिखा हाँ बराबर। सर, हो गया। x² बाई 2 प्लस x ब्रैकेट करके ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, नीचे 0, दो लिमिट नीचे आएगी तो नीचे 0 और ऊपर 5 लिखो।
अब अपर लिमिट रख के इसकी वैल्यू निकालो, 5 रख दो सभी x में, तो 5² मतलब 25/2 प्लस क्या होगा 5, इसको एक ब्रैकेट में बना दो, 25/2 प्लस 5 ब्रैकेट में कंप्लीट करो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट है वो रख के लिखो, तो जहां x है वहां 0 लिखना पड़ेगा, अभी लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो 0 + 0 ऐसा आएगा। बोलो, पहले अपर लिमिट रख के वैल्यू निकाली तो 25/2 प्लस 5 आया कि नहीं, और जीरो माइनस रखिए तो लोअर जीरो लिमिट आएगा। 0 आएगा, तो वो तो 0 तो कट होने वाला है, कहीं है ही नहीं, तो 25/2 प्लस 5 ही आंसर आया, फिर से सिंप्लीफाई करो तो 35/2 ही होगा। बोलो, अब तो समझ में आना ही चाहिए। आ गया सर, तो समझ आ गया इतना समझ। इतना शॉर्ट होता है, इतना शॉर्ट बना के दिया है, किसने, न्यूटन और लेibniz ने। तो इस तरीके से हम आगे सम गिनने वाले हैं आफ्टर दिस एक्सरसाइज, अभी नहीं अभी आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही है। क्या पूछा जाएगा कि इवैल्यूएट करके डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम देगा और बाद में लिखेगा एज अ लिमिट ऑफ सम, मतलब उसी टाइम अगर आप ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताई जो यूज करोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? यस सर। तो सर अच्छा, यह तो मेथड रखी क्यों है जब है? अच्छी मेथड है हमारे पास तो? क्या इससे भी अच्छी है, क्या बोल रहे नहीं मतलब जब ये सर आपने जो अभी हमको हमको मेथड सिखाई जो लॉन्ग जा रही है, तो हैं? वो हाँ, क्यों रखी जब हम न्यूटन उसका अरे था तब। भाई उसकी वहां से तो उसका आंसर आया ना, ये पहला क्वेश्चन जो था मैंने डिस्कस करके बताया कि अगर कोई कर्व ने एरिया बनाया तो आप कैसे ढूंढोगे, उसका तो हार्ड है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो ये हार्ड है। यहां से तो क्वेश्चन निकला, जब भी वो न्यूटन और लाइब्निज ने थिंकिंग करना शुरू किया तो उसने क्या बोला कि भाई स्क्वायर का तो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, इसका हम एरिया तो फॉर्मूला से निकाल देंगे, लेकिन अगर कोई कर्व ने ऐसा एरिया बनाया कि जो इसमें से कोई भी नहीं है, इसका कोई स्पेसिफाई फिगर ही नहीं हम बोल सकते हैं, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो तो उसमें छोटे उसके, छोटे पार्ट्स हाँ, में। तो उसके डिस्कशन में ही तो उसने ये बात बताई, तो अभी उसको क्यों अवॉइड करे भाई? उसने कैसे ऐसे बताया, ये उसने कैसे बताया कि फाइंड और इवैल्यूएट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, मतलब कि लिमिट ऑफ सम के हिसाब से कैलकुलेट करो। अरे बाद में न्यूटन और लेibniz ने सोचा कि भाई ये तो बहुत लेंदी पड़ने वाला है, मतलब उसको तो रिजेक्ट नहीं कर सकते हम, कहाँ से आया वो तो पकड़ना चाहिए ना। आप लोग क्या बोलते हैं, बस डायरेक्ट हमको आंसर दे दो, डायरेक्ट बता दो, तो भाई डायरेक्ट तो आंसर भी है, कैसे आता है किस तरह से आता है वो तो आना ही चाहिए ना। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस रखने के लिए ये सम आता है एग्जाम में। अभी समझ में आया बराबर? यस सर। हाँ हाँ, सर। हाँ, तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई ये सिंपल मेथड बताया जाए बस तो इसे ऐसा ही करना चाहिए। ये तो बात की बात उन लोगों ने सोची, पहले नहीं सोचा था, पहले तो इस उन्हें ऐसा ही बताया था, बाद में उन लोगों ने सोचा कि साला ये तो तकलीफ वाला है, ये तो कुछ लिमिटेड सम ही इसी तरह गिन सकते हैं हम, हर एक टाइप का सम नहीं गिन सकते हैं, उसमें बहुत टाइम बिगड़ेगा और डिफिकल्ट भी होगा। तो उन लोगों ने बाद में बताया कि भाई ये इसको इसी तरह से भी सेट कर सकते हैं और दोनों में आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी समझ में आ गया? तो यस सर। पहली एक्सरसाइज इसीलिए दिया कि ये मूड जो था उसका, ओरिजिनल वर्क यहाँ था बाद में उन लोगों ने ढूंढ निकाला कि इससे बेटर तो ये है, तो ये हम लोगों के लिए लिया, ऐसा नहीं कि भाई ये एग्जाम पूछा तो क्यों सर हम लेंडी मेथड करें, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेंडी क्वेश्चन नहीं है ये मेथड वाला क्वेश्चन है, इसे मेथड के हिसाब से करना है, और बाद में जो करता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से करोगे, यही बात है, दोनों में ये चेंज है। आप सब लोग क्या ढूंढते हैं, बहुत सिंपल ही आइटम चाहिए तो ओरिजिनल आइटम कौन समझेगा भाई? ये तो अच्छा है अभी अभी थियोरी वर्क नहीं पूछते हैं आपके एग्जाम में, पहले तो हर एक पेपर में थियोरी का मार्क होता था, पहले 75 का मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दो पेपर निकालते थे 12th स्टैंडर्ड में, समझे? और हर एक चैप्टर का कितना कितना मार्क रखते थे, हर एक क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन आता था,
15-15 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का रख के 75 मार्क करते थे। तो उसमें तो एमसीक्यू क्वेश्चन का चांस ही नहीं था, वो बराबर अच्छा पेपर था। क्वेश्चन 1 लिखते हैं तो उसमें ए बी सी डी करके 4 पोर्शन आता था। ए में एक थियरी कंपलसरी ही आती थी। मान लो कि पॉइंट चैप्टर का है तो पॉइंट के लगती एक थियरी अवश्य होती वहां 3 मार्क। पॉइंट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत छोटा सा है, उसी टाइम पे तो 8-10 थियरी अंदर वर्क में आती थी, तो सभी तैयारी करनी पड़ती थी भाई। उसमें 75 मार्क में से तो 25 और 30 मार्क तक की तो थियरी आती थी। इसके बाद बाकी बचे में एग्जाम्पल आते थे। ये आप लोगों ने देखा ही कहाँ है, वो परफेक्ट मेथड वाला पेपर था। अभी क्या हुआ कि रिजल्ट खराब आने लगा, बच्चे लोग करते नहीं हैं, बहुत रबरिंग होती थी उसी टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम कंप्यूटर का जमाना नहीं था। तो बाद में उन लोगों ने क्या धीरे धीरे चेंज किया, थोड़ा बैलेंस क्वेश्चन पेपर लाया, फिर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पाया और आपको सरल बना दिया। तो आपको तो दिमाग में सोचना ही रोक दिया। अभी क्या करते आप फॉर्मूला ले ले और प्रॉब्लम गिन ले, बस कहाँ से आई कैसे आई कोई समझने की इंतजार ही नहीं है आप लोगों की। इसीलिए आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये मेथड है तो मेथड की तरह आपको समझना भी चाहिए। देखो पहले वाला सम मैंने दिया था इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स, पहला अभी अभी जो हमने कंप्लीट किया पहला सम याद आया, इंटीग्रेशन ए यस सर। टू बी एक्स डी एक्स, उसका आंसर आया था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अभी मैंने फॉर्मूला बताई उसके मुताबिक बनाओ, इतना सिंपल हो जाए, 2 ही स्टेप में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन लिखोगे, फिर अपर लिमिट लिख Yes, दो तो sir. बी स्क्वायर बाई 2, माइनस करके लोअर लिमिट लिखो तो ए स्क्वायर बाई 2, मतलब हो गया ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। Yes, sir. हाँ तो फिर मेथड कहाँ से आया वो तो समझना जरूरी है। हाँ तो एक सम तो ऐसा आएगा ही, टेढ़ा मेढ़ा भी आएगा। ये तो अभी अभी आप लोगों ने ये एल्जेब्रिक फंक्शन में बता रहा हूँ, बाद में जब एक्सपोनेंशियल आएगा ट्रिगो आएगा तो डेंजर बनता जाएगा। तो देखो थर्ड एग्जांपल अभी आ रहा है, पेज नंबर 109 पे ही है बस। देखो ये भी एल्जेब्रिक आया, एक्स स्क्वायर 2 2 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, समझ लो अपने तरीके से। एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर, बोलो कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा कि नहीं, बिटवीन 2 to 3। Yes, sir. बोला जाएगा। और इसके बाद उसको डिवाइडिंग करो, डिवाइडिंग क्लोज इंटरवल 2 to 3 इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ h, और इसके बाद h की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए अपॉन ए, 3 माइनस 2 बाई एन 1 बाई एन, एंड डिवीजन पॉइंट होगा xi बराबर a प्लस आई एच। अब a की वैल्यू 0 मत लिखना, 2 है तो 2 लिखो प्लस आई, और h की वैल्यू 1 बाई एन। By n. तो इसके बाद एफ एक्स को निकालो, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर है तो fxi. एक्स आई लेंगे अपने तो एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स आई अपने हाँ निकाला अभी ऊपर। 2 प्लस 1 बाई आई बाई एन निकाला है, Yes, बस sir. हाँ सर, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसका होल स्क्वायर क्या होता है वो भी लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी 4 स्क्वायर। प्लस 4 आई बाई एन प्लस आई स्क्वायर बाई एन Yes. स्क्वायर, हो गया Yes, ये sir. एफ ऑफ एक्स आ गया। अब बाद में तो क्या इंटीग्रेट कर करना, देंगे। हाँ फॉर्मूला के हिसाब से जाना है। अभी हुआ इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी b माइनस ए बाई एन सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई। अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसमें b माइनस ए क्या आया था, b माइनस ए बाई एन, तो वो हमने निकाला था One. h 1 बाई एन, तो 1 बाई एन लिख दिया, और Yes, सिग्मा sir. एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू लिखी 4 प्लस 4 आई बाई एन प्लस आई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। Yes. चलो भाई कितना देर लगती है, ला दिया कि नहीं, पंकज गायब हो गया है स्क्रीन पे से, सेट कर ले। हाँ एफ ऑफ एक्स आई जो मैंने बताया वो 4 प्लस 4 आई बाई एन प्लस आई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आया। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी b माइनस ए अपॉन एन सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई। b माइनस ए बाय एन का मतलब b तो है 3 माइनस टू 1/n निकाला ही है, वही लिखा। फिर ये सिग्मा करके एफ ऑफ एक्स आई आया था, वही लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1/n अंदर ले जाएंगे और सिग्मा को सेपरेट करेंगे एक साथ। तो देखो पहला ओके 4/n बाहर आ गया, 4 बाहर निकाल दो, 4/n सिग्मा 1 हुआ, सिग्मा 1 की वैल्यू n। ऊपर जाने दे, थोड़ा सा जरा चेंज हो सकता प्लस, हाँ बस, प्लस थोड़ा छोटा बना दे तो ऊपर जाएगा, दिखाई हो देगा। तो 4/n आउटसाइड 1/n है तो 4/n² हुआ। एन सिग्मा आई का मतलब सिग्मा n इंटू n प्लस 1/2। समझे आप? यस सर आप देखो 1/n बाहर है और सिग्मा के अंदर लास्ट वाली टर्म में 1/n², I²/n² है, तो n² मिला दो तो 1/n³ होगा। एंड सिग्मा I² की फॉर्मूला लिखी है, छोटा बना ना जरा तो ऊपर दिखाई देगा, छोटा, हाँ बड़ा, हाँ यहाँ। तो 1/n³ एन n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 जो फॉर्मूला है ना सिग्मा n² की, वही लिखी है। यस सर बस अभी देखो एन कट हो जाएगा, एन कट हो जाएगा, पहले में से 4 आएगा, दूसरे में देखो यस सर 4/2 का मतलब 2 होगा। कंपाउंड तुम ऊपर लोग में भी आवाज n, कट हो रही है सर की? नहीं कहीं पे कट नहीं हो रही, तेरे माइक में डिफा। नहीं, और ये हेलो तेरा वो क्या इंटरनेट इंटरनेट गया स्लो होगा तेरा। हाँ n² बाहर आएगा तो हेलो n² कट हो जाएगा, 1 प्लस 1/n, यस सर 2 इंटू 1 प्लस 1/n² ऐसा होगा। और इसमें भी दर एक ब्रैकेट में से n बाहर निकाल दो तो n³ हो जाएगा, यस सर हो जाएगा तो n³ कट करेंगे, 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n ऐसा होगा ऊपर, और नीचे 6। देखो अब, हाँ ये नए पेज पे सभी मैंने बोला वही हो है, देख लो बराबर। उस पहले में से 4 कांस्टेंट आ गया, दूसरे में n² कट हो गया तो 2 इंटू 1 प्लस 1/n का मतलब 2 इंटू 1 प्लस 0। और तीसरे में क्या हुआ, लास्ट टर्म में n³ निकाल के कट कर दिया और 1 यस सर अपॉन n 0 लिखा, तो 1 प्लस 0 एंड सेकंड ब्रैकेट में 2 प्लस 0 डिनोमिनेटर में 6। तो हुआ क्या, पहला 4, बाद में 2 इंटू 1 2, 4 प्लस 2 6, एंड लास्ट ब्रैकेट में 2/6 मतलब 1/3। तो आंसर यस हो सर गया 6 3 18 प्लस 1 19/2, यस सर 19/3। अगर आप चेक करना चाहो तो उसी टाइप से चेक कर सकते हैं जो मैंने अभी रूल बताया, वो बाद में यूज करने वाला है आफ्टर एक्सरसाइज के ओके सर बाद, अभी नहीं। अभी x³/3 करके देखोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। हाँ, चेक करना है तो घर पे चेक कर लेना। देखो अभी मैं एग्जाम्पल 5 पे जा रहा हूँ, वहां देखो बराबर ऊपर जाने दे। हाँ, यहाँ इंटीग्रेशन -1 से 1 e⁻x dx है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, यस सर e⁻x वाला आया, तो यहाँ वो सिग्मा एन सिग्मा एन क्यूब काम में नहीं आने वाला। याद रखो बराबर मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जब भी ओके सर एल्जीब्रिक फंक्शन होगा, x² x³ वाली टर्म आएगी, तभी वो सिग्मा जो हमने फॉर्मूला अभी अभी यूज किया था ना, लिमिट यस n सर टू इंफिनिटी b माइनस a अपॉन n इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई, वो यूज करेंगे। अगर ओके एक्सपोनेंशियल सर आता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, मैं वहां b माइनस a/n की जगह h लिखूंगा, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी की जगह लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई। जब हम थियोरी डिस्कशन करते थे, मैंने बोला था 2-3 तरीके से उसको लिखा जाता है। तो यस अभी सर यहाँ बात तो एक ही है, वहां n की फॉर्म में था, यहाँ h के फॉर्म में लाएंगे। देखो जरा कैसा लिखा है मैंने। पहले तो फंक्शन को देखो, e⁻x है, वो ऑब्वियसली कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल -1 1, मतलब कि इन दोनों में इंटरवल में -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू ले लो, e⁻x डिफाइन ही है तो कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। उसका ग्राफ वन पीस आएगा m। अभी डिवाइडिंग करते हैं क्लोज इंटरवल -1 1 इंटू एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ h में, तो h की वैल्यू क्या होगी,
फॉर्मूला के हिसाब से लिखो, b माइनस ए बाय एन, बी का मतलब यहाँ 1 है, फिर -(-1) b माइनस ए अपॉन एन, तो उसका आंसर आया h की जगह 2/n। पता चला बराबर ध्यान से। यस सर। अब xi लिखे, xi का मतलब है a प्लस आई एच, यहाँ a की वैल्यू -1 लिखो, h की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि h का आंसर 2/n है, तो वो 2/n लिख के n में फॉर्म में नहीं जाना का है, हमको h का ही फॉर्म में चाहिए, तो मैंने -1 ओके सर। प्लस आई एच वैसा ही लिखा। पता चला बराबर सबको। यस सर। हाँ सर। हाँ, अब देखो एफ एक्स बराबर ई रेस टू एक्स वो फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स आई की जगह हम ई रेस टू एक्स आई लिखेंगे। अभी एक्स आई की वैल्यू जो अभी अभी मैंने लाई -1 प्लस आई एच वो लिख दिया, ई रेस टू -1 प्लस आई एच, और पावर सेपरेट कर दिया, आप जानते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से, ई रेस टू यस सर। -1 इंटू ई रेस टू आई एच, वेर ई रेस टू -1 कॉन्स्टेंट है, तो बाद में मैं बाहर निकाल दूंगा। देखो अभी मैंने स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन -1 to 1 ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू, देखो फॉर्मूला में क्या चेंज आया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड एच, जरा ऊपर लेने तो थोड़ा दिखाई दे, ये डार्क आया है सिंबल तो वहां नहीं दिख रहा है, ऊपर जाने दे। हाँ, एच इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई दिखता है ना बराबर अभी। यस सर। हाँ, I1 to n, अभी देखो h की जगह h और f ऑफ एक्स आई जो अभी अभी मैंने बताया ई रेस टू -1 ई रेस टू आई एच वो लिख दो। अभी जो इसमें सिग्मा में ई रेस टू -1 है, उसमें नहीं आई है नहीं एच है, तो टोटली बाहर निकाल दो। देखो मैंने बाहर निकाल दिया, लिमिट और सिग्मा दोनों में से बाहर, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर ही चला जाएगा, ई रेस टू -1 समझ में आया कि नहीं। यस सर। हाँ सर। फिर हाँ लिमिट सर। एच टेंस टू 0 एच इंटू सिग्मा ई रेस टू आई एच आया I1 to n, अभी ऊपर जाने दे। हाँ, 2-4 स्टेप है बस यहाँ तक। अभी ई रेस टू -1 एज इट इज, लिमिट एच टेंस टू 0 एच, अब सिग्मा ई रेस टू आई एच का क्या करेंगे, तरत पता चल जाता है कि हाँ I1 to n, यहाँ वो एल्जीब्रिक वाला फंक्शन नहीं, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब कि पावर में इंडेक्स में नहीं है, आई मीन इंडेक्स में आई एच है और बेस में ई है, तो इसीलिए यस यहाँ सर। पावर में चेंज होने वाला है, तो ये इसका एक्सपांशन लिखना पड़ेगा। यहाँ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। देखो ई रेस टू एच I1 लिखा तो 2 लिखा तो ई रेस टू 2h, 3 लिखेंगे तो ई रेस टू 3h, पता चला बराबर। डॉट 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 n टाइम्स लिखना है, n टर्म्स आएगा बराबर, पता हुआ। हाँ सर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, with first term e raised to h and common ratio also e raised to h। याद ही नहीं होगा तो क्या लिखोगे, चलो जरा पेज में लिखो, मैं लिखवाता हूँ वो। यस सर, याद है सर। हाँ, कहाँ याद है, बोलते नहीं, चुप हो जाते वो हैं सर वहीं मैं बोल रहा था, कब से बोल रहा था सर, बाद में पता चला माइक बंद है। अच्छा, h इंटू जो ब्रैकेट में है ना, पहला टर्म ई रेस टू एच है, उसको ई रेस टू एच से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ई रेस टू एच प्लस एच का मतलब ई रेस टू 2h आएगा, फिर से अगर ई रेस टू एच से मल्टीप्लाई करोगे 3h आएगा कि नहीं बोलो। हाँ यस तो, सर आएगा। हाँ हाँ तो, सर। हाँ तो वो फॉर्मूला है अपने पास एसएन, एसएन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, याद हो तो ए इंटू ब्रैकेट यस सर, आर a into इंटू 1 एन minus माइनस r 1 into अपॉन n upon आर 1 माइनस minus r। 1, बस तो उसी हिसाब से हाँ लिखा है। देखो ए मतलब ई रेस टू एच, ब्रैकेट में मैंने आर रेस टू एन का मतलब बनाया ई रेस टू एच का पावर एन -1 एंड डिनोमिनेटर में ई रेस टू एच -1, हो गया ना बराबर। यस सर। हाँ अभी सर। आप, हाँ जो बराबर देख लो नेक्स्ट पेज, हाँ जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है किस फॉर्मूला से आई बराबर ने। अब थोड़ा आगे जाने दे, और आपका जो आंसर है वो वहां चेक करना पड़ेगा आपको, है बार बार। देखो ई रेस टू एच तो वही का वही रहेगा, ब्रैकेट में जो है ना वो उसका मैं बोलूं ई रेस टू एन एच होगा, ई रेस टू एन एच, ऊपर देखना ऊपर बताता है यस सर। ई रेस टू एन एच -1 एंड डिनोमिनेटर में ई रेस टू h -1 आएगा, जरा ऊपर जाने दे अभी।
ऊपर जाने दे। हाँ देखो अभी नए पेज पे, पेज नंबर 111, हाँ यही जरा नीचे, हाँ बस देखो ई रेस टू -1 ऑलरेडी बाहर था, है ना। अभी देखो यस सर। लिमिट h टेंस टू 0, बाहर जो h था वो ऊपर h लिख दिया, और डिनोमिनेटर में वो हमने अप्लाई की ना फॉर्मूला अभी अभी, तो ई रेस टू यस h -1 आया था, उसको भी मैंने लिमिट में से दूसरा साइड पे कर हाँ दिया, h इन अपॉन ई रेस टू h -1 कर, इसकी एक लिमिट लिखी क्योंकि उसकी फॉर्मूला है, और दूसरी टर्म बाकी बची हुई लिमिट h टेंस टू 0 ई रेस टू h इनटू ब्रैकेट ई रेस टू nh -1। अब ये टर्म आया कि नहीं सही बराबर, तो ऊपर जाके देख लो, ऊपर हमने जो अभी अभी लाया था, हाँ बस बस यहाँ देखो ई रेस टू h बाई ई रेस टू h -1 को बाहर निकाल दिया था। यस सर। हाँ अभी लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ई रेस टू nh -1 लिखा है, चेक कर लो फिर से, वहां जाने दे अभी। अरे यार जाने में आने जाने में गड़बड़ हो जाती है तेरी, हाँ बस यही है ना, h को बाहर निकाल दिया था, ई रेस टू एच अंदर, एन ई रेस टू एन एच -1। अभी देखो यहाँ h टेंस टू 0 नहीं लिखना है, ई रेस टू एन एच में एन एच की वैल्यू है अपने पास, एन एच मतलब h बराबर 2/n लाए थे हम, यस h सर। बराबर 2/n आया था, उसमें से क्रॉस प्रोडक्ट करके एन एच की वैल्यू 2, तो यहाँ मैं एन एच की वैल्यू लिख देता हूँ स्क्वायर -1। तो अब समझ में आया। यस अच्छा सर। हाँ अभी पहली जो लिमिट है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने लास्ट में लिख दी है, और ये फॉर्मूला वाला लिमिट उन लोगों ने डिस्कशन भी नहीं किया है टेक्स्ट बुक में भी। तो दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 ए रेस टू h -1 अपॉन h बराबर log a टू द बेस e, लिखना है तो लिख दो, लिमिट, ओके सर। फिर से लिखो मैं बोलूँ वो, लिमिट h टेंस टू 0 यस सर। ए रेस टू पावर h પછી -1 नीचे है क्या रनिंग में, ए रेस टू h -1 अपॉन h, तो उसका आंसर होता है log a टू द बेस e। एंड दूसरा नंबर है लिमिट h टेंस टू 0, ए के जगह ही लिख दो, तो ई रेस टू h पावर -1/h बराबर होगा log e टू द बेस e, उसकी तो वैल्यू 1 ही है। आया समझ में बराबर। यस सर। तो ये जो दूसरी वाली फॉर्मूला है उसका यूज है यहाँ, अपर लो इंटरचेंज है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो अभी फर्क नहीं पड़ने वाला, 1/1 का मतलब 1 ही है यस। तो इसीलिए ई यस। रेस टू -1 इंटू 1, बाद में मैंने ई रेस टू h इंटू स्क्वायर -1 बताया, वो एन एच की जगह 2 लिख दिया। अभी ऊपर जाने दे, अब क्या होगा, अभी तो सिंपल है, h की जगह 0 लिख देंगे तो क्या होगा, जरा जाने दे ऊपर, गया ना। कहाँ जाता ही अरे नहीं सर हो, यहाँ फिट हो जाता है तेरा, था नहीं सर। कोई बात नहीं, फिर से ला दे तो आ जाएगा। ई रेस टू -1 बाहर है, और h टेंस टू 0 लिखेंगे तो ई रेस टू 0 का मतलब 1 हो गया, अने ब्रैकेट में ई स्क्वायर -1 हो गया यस ना सर। बराबर, तो स्क्वायर -1 अपॉन ई लिख सकते हैं, बाहर ई रेस टू -1 का मतलब 1/, अगर सेपरेट करके लिखो तो ई -1/, ये आंसर है उसका। ओके सर। बोलो बराबर समझ में आना चाहिए। अभी यस सर। हाँ बिल्कुल उसी टाइप का सम नीचे आ रहा है, एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, शायद क्वेश्चन इसमें नहीं दिया होगा, एक्स्ट्रा करके मैंने लिखा है इंटीग्रेशन 1 to 2, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 7.8 आई थिंक, बराबर ना, हाँ मैं जरा सर। देख के बताऊं आपको वो है कि नहीं। अच्छा 7.8 जो एक्सरसाइज है इसमें तो सिर्फ 6 ही सम दिए हैं,
हमने 1 2 3 4 एंड 5 तो कंप्लीट कर दिया, एक बाकी है वो बाद में आएगा। तो ये तो एक्स्ट्रा सम मैंने बताया है आपको लिए, हाँ बराबर देख लो। मान लो कि ये दिया ही नहीं, उसने सिर्फ एक ही सम दिया था, इसीलिए मैंने ये लिया था कि 2 raised to x dx शायद हो, इंटीग्रेशन 1 to 2, तो उसको कैसे गिना जाएगा? अभी e raised to x जो वर्क आया था ना, बिल्कुल Yes, उसी sir. टाइम। हाँ, तो देखो हियर द गिवन फंक्शन 2 raised to x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 2, वो बच्चे ने लिखा है, उसका हैंडराइटिंग चेंज हो गया अगर आप देखो तो। Yes, sir. और इसके बाद हम डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे इंटरवल 1 2 को, तो डिवाइडिंग क्लोज इंटरवल 1 2 इंटू एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ h, तो h विल बी 2 माइनस 1 अपॉन n। देखो बराबर ठीक तरीके से, Yes, sir. 2 माइनस 1 b माइनस ए, मतलब 2 माइनस 1 बाई एन, यानी कि 1 बाई एन आएगा। Hmm. और xi जो ढूंढोगे तो a प्लस आई एच, ए की जगह 1 लिख दो तो 1 प्लस आई एच, 1 2 इंटरवल है ना, तो ए की वैल्यू 1 Yes, है, sir. तो 1 प्लस आई एच। अभी एफ एक्स लिखना है, Hmm. आप देख रहे हैं अपने मोबाइल में, नहीं Yes, sir. आता है? देख रहे हैं. हाँ, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 2 raised to x, तो एफ ऑफ एक्स आई बराबर 2 raised to xi, समझ में आ गया होगा। और Yes, एक्स sir. हाँ सर। एक्स आई की जगह 1 प्लस आई एच 1 plus लिखो, IH. तो 2 raised to 1 प्लस आई एच हुआ। Hmm. और बाद में लो ऑफ इंडाइसिस करके हमने 2 सेपरेट कर दिया, 2 इंटू 2 raised to i h। 2 into IH. अब फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़े, इंटीग्रेशन 1 to 2 raised to x dx, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 H. h इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई, ये याद रखना है, ये एक्सपोनेंशियल Sir. वाला सम में। अभी h की जगह h ही लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स आई अभी अभी लाए, 2 इंटू 2 raised to i h लिख दिया। 2 Hmm. कांस्टेंट है, वो टोटली बाहर निकाल दो, समझ Yes, में आ sir. ही जाएगा। 2 बाहर निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू सिग्मा 2 raised to i h होगा, वो Yes, तो sir. ऑलरेडी बाहर निकल गया है। अभी सिग्मा Hmm. 2 raised to i h का एक्सपांशन कर दो, तो h इंटू ब्रैकेट, बोलो सिग्मा 2 raised to i h H. का मतलब 2 2 raised to raised 2H to h plus 2 प्लस raised 2, to 3H. हाँ ऐसा अप टू n टाइम्स होगा, तो वो Yes, भी sir. ज्योमेट्रिक सीरीज Trick ही है। series. Hmm. 2 raised to h फर्स्ट टर्म है, और रेशियो भी 2 raised to h है, 2 raised to h इंटू 2 raised to h करोगे तो 2 raised to h प्लस h का मतलब 2 raised to 2h। इसके बाद अगर फिर से 2 raised to h से मल्टीप्लाई करो तो 2 raised to 2h प्लस h मतलब 2 raised to 3h है ना सब। तो इसका Yes, sir. इसका अर्थकथन ये हुआ कि पहला टर्म 2 raised to h है और रेशियो भी 2 raised to h है। और फॉर्मूला के हिसाब से हम सम लिखने जाए तो बाहर 2 आएगा, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, h करके ब्रैकेट में देखो 2 raised to h, ये वाली टर्म 2 raised to h, फिर r raised to n, 2 raised to h का पावर n माइनस 1, बस यही जगह पे, अपॉन r-1 मतलब 2 raised to h माइनस 1, थोड़े ऊपर जाने दो। तो अब क्या हुआ, 2 बाहर है, अब हमको निकालना है एक साथ में, देखो h को लाना है डिनोमिनेटर में 2 raised to h माइनस 1, ये साथ में लिख दिया पहला वाला लिमिट। वो कौन सी वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी जो मैंने अभी अभी 2 फॉर्मूला लगाई ने, बताई नहीं, दो दो फॉर्मूला, वो पहली वाली लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to h माइनस 1 अपॉन h, तो log a to the base ही होगा। यहाँ एक की जगह 2 है, पता चल जाना चाहिए, और रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो 1 अपॉन log a to the base ही आएगा, मतलब log 2 to the base ही आएगा। बोलो पता चला बराबर। हाँ सर। और दूसरी वाली टर्म जो लिमिट वाली है, उसमें देखो इनटू सेपरेट लिमिट करके लिखा है, 2 raised to h, ऊपर जो बाकी बचा है उसको साइड में लिखो 2 raised to h, एंड ब्रैकेट में 2 raised to nh माइनस 1 होगा। हाँ, अभी nh की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो हमने h वैल्यू निकाली थी 1 अपॉन n, तो nh की जगह 1 होगा। हाँ सर, बोलो एन कटोगे ऊपर 1। हाँ, और 2 इंटू 1 अपॉन log 2 टू द बेस ई, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 raised to h, एंड 2 माइनस 1 का मतलब 1, अभी 2 raised to 0 की भी 1 हो गया,
तो आंसर आया 2/log 2 to the base e और 2 into log e to the base t। ऊपर लिखोगे तो नंबर एंड बेस चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। ऐसा समझ में आता है ना, हाँ रूल सर, हाँ आता तो है रूल रूल। ब्लॉक का है। अब देखो एग्जाम्पल 2, वो भी मैंने एक्स्ट्रा सम लिखा है। हाँ, अगर अगर वो वेरीफाई करना चाहो पहला उसके आगे वाला जाने दिन जरा नीचे। 2 रेस टू एक्स था ना, 2 रेस टू एक्स, बस बस इतना ही, बहुत बहुत ज्यादा है, जवाब भी चाहिए हमको। हाँ, मैं क्या बोलूँ, ये आंसर जो लाए हम 2 log e to the base 2 या तो 2/log 2 to the base e, किसका आंसर था? इंटीग्रेशन 1 to 2 2 रेस टू एक्स dx का, बराबर। अगर आप फॉर्मूला से डायरेक्ट करोगे तो इंटीग्रेशन 2 रेस टू एक्स का क्या आंसर होता है? इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन a रेस टू एक्स, उसी मुताबिक बोलो। इंटीग्रेशन आता है a रेस टू एक्स dx का ए रेस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। अपॉन लॉग ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, तो यहाँ 2 रेस टू एक्स अपॉन लॉग 2 आएगा। हाँ सर। हाँ, अब भी ब्रैकेट कंप्लीट करके 1 से 2 लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट चेक करोगे तो जहां एक्स है वहां 2 लिखना है, तो 2 रेस टू एक्स ऊपर में है तो 2 स्क्वायर होगा अपॉन लॉग 2। फिर माइनस करके 1 लिखेंगे तो 2 रेस टू 1 अपॉन लॉग 2 तो कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो वही डिनोमिनेटर आएगा। ऊपर 2 स्क्वायर माइनस 2 रेस टू 1, मतलब 4 - 2 2 आया कि नहीं? 2/log 2 बोलो। आ गया सर। हाँ, अभी देखो लास्ट वाला सम, आई मीन सॉरी नेक्स्ट सम, वो भी एक्स्ट्रा सम है। मैंने 3 सम एक्स्ट्रा बताया है, नहीं 4 सम एक्स्ट्रा बताया है, ये इसीलिए कि उसी टाइप का सम उन लोगों ने नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, और वही टाइप का सम पूछा भी जाता है। अब मैंने लिखा है देखो, इंटीग्रेशन log 7 to the base e to log 9 to the base e, log फॉर्मेट पढ़ना है, log 9 है, ओके सर। e रेस टू एक्स dx। अभी उसका आंसर कैसे लाएंगे? e रेस टू एक्स का तो हमने कंप्लीट कर लिया है, a to b वाला, याद है कि नहीं? पहला सम टेक्स्ट याद बुक है का सर। लिखा। हाँ, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx था, तो यहां मैंने चेंज कर दिया log 7 to the base e to log 4 to the base e। अभी इसी टाइप का सम बहुत पहले पूछा गया था, हाँ? इसीलिए मैंने लिया था log ओके सर। 7 to the base e to log 9 to the base e and e raised to x। उसी टाइम पे जब ये पूछा गया था, मेरे को बहुत याद नहीं है लेकिन वो करीबन 80 के 81 के साल में पेपर में आया था, 1980 और 1981 में। तभी बच्चे वो तकलीफ में आ गए थे, कंफ्यूजन पड़ गए थे उन लोगों को। और उसी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन सम में इंटीग्रेशन a to b e raised to x dx दिया गया था। तो उसी समय बच्चे लोगों को ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, और वो नो ऑप्शन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसके अंदर। तभी हाँ, तो 150 में से 150 आ सकते थे उसी टाइम बच्चे का, लेकिन हाईएस्ट मार्क 148 आया था, 147 ऐसा मार्क आया था। इसमें निकल गए मार्क्स। हाँ, इसमें से निकल गया था। क्यों? कि घबरा गए बच्चे। कैसे बच्चे घबरा गए वो मैं बताऊं। मैंने तो यहाँ सरल बना दिया आपके लिए। क्या किया? एज्यूम कर लिया, log 7 टू द बेस ए को ए कर दिया एंड log 9 टू द बेस ई को बी कर दिया, तो ये तो प्रॉब्लम ही हो गया, इंटीग्रेशन a to b e raised to x dx। और वो तो यस आप सर। ढूंढ सकते हैं। और लास्ट में मैंने बी की जगह log 7 लिख दिया और ई की जगह, ए के बी की लॉग जगह 9। हाँ ऐसा लिख दिया, तो कितना सरल हाँ हो सर। गया होगा वो समझ यस सर। सकते हैं आप। उसी टाइम बच्चे लोगों ने यही इंटरवल लेके चालू कर दिया, ए बी की जगह log 7 टू द बेस ई log 4 टू द बेस ई, પછી लिखा डिवाइडिंग log 7 टू द बेस ई माइनस log 9 टू द बेस इनटू एन सब इंटरवल। हाँ सर, वही फॉर्मूला आ गया फिर डायरेक्ट। फिर तो वो तकलीफ में मुझे गए कि एच बराबर क्या लिखे और बाद में वो अंदर कैसे स्टार्ट करे। तो शायद 1 मार्क मिला होगा जिसको मिला होगा उसी टाइम पे। यहाँ तो आपके लिए मैंने सिंपल कर दिया, और आपको यही याद रखना है, कभी ऐसा भी सर सम आ कब आया था जाता ये है। क्वेश्चन? वो मैंने बोला ना 1980 और 81 के आसपास में था, बहुत अच्छा, एग्जैक्ट तब तब आप एग्जैक्ट। पढ़ाते थे सर? अरे भाई, मैं तो 77 से पढ़ाता हूँ, क्यों करते हैं।
77 नहीं, मैं मैं तो जब, मेरी बात सुनो, मैं तो जब पढ़ने जाता था ना कॉलेज में, तब हाँ सर। हाँ, तब प्री साइंस से मैं ट्यूशन दे रहा था बच्चे लोगों को। चलो अभी जो ओहो। आप जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ना अभी, तो मैं उसी Yes, sir. टाइम हाँ प्री सर। प्री साइंस में पढ़ता था। और मेरे सर्कल में 2-4 बच्चे थे फ्रेंड सर्कल में, तो उन लोगों को सर ट्रीगो आपको ट्रीगो में समझ 40 नहीं पड़ती थी, तो वो ट्रीगो सीखने के लिए मेरे घर आते थे, तो वो सर आपको ट्यूशन चालू कर। 45 इयर्स हो गए हैं। हाँ तो है ही नहीं, तो इसमें कोई सही गलत बात थोड़ी है। शक वाली बात तो। मैं बोल रहा हूँ वो सही बात है, लेकिन क्या है, 77 से 2012 तक तो मैंने टीएनटीवी में सर्विस किया, वो 35 ईयर हो गया वहाँ पे, और वहाँ से रिटायर्ड हो गया। फिर अपने ये स्कूलों में, वही स्कूलों में बुलाता है, मैं जा रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, अपने स्कूल में भी चलता है अभी। तो यही बात है। तो ये तो इंटरेस्ट होना चाहिए सबको, इंटरेस्ट की बात है भाई। Yes, sir. हाँ, मुझको पढ़ाने में इंटरेस्ट आता ही है, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ तो सर दिखता है। हाँ, तो इसीलिए ये चलता रहता है। तो उसी टाइम पे शायद ये एग्जाम पर पूछा गया था, तो तकलीफ आ गई थी बच्चे लोगों को। तो मैं अभी अभी आपने बताया, मैं कि यहाँ सिर्फ ए और बी सपोज करके वो प्रॉब्लम सरल बना सकते थे। देखो ये पहले हमने कर दिया, वही सम है, जरा आगे जाने दो, ई रेस टू Okay, एक्स। sir. हाँ, बस देखना ही है, सिर्फ यही वर्क किया था कि नहीं पहले हमने। Mhm. बाद लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट आंसर ला लो उसका, नेक्स्ट पेज पे होगा, ये सब कंप्लीट किया था हमने अभी अभी। ई रेस टू ए इंटू एच करके आया बराबर। बाद में देखो मैंने कीमत रख दी, बी की कीमत log 9 टू द बेजी, ए की जगह log 7 टू द बेजी। फिर रूल लग गया सर लॉग का। 9 नीचे हो 9 गया। माइनस 7 बराबर 2, कितना सिंपल हो गया देख लो, है ना। हाँ बस सर। हाँ, यहाँ टाइम भी खत्म हो गया, और एग्जाम्पल आगे हम कल देखेंगे। एग्जाम्पल 3 वो भी एक्स्ट्रा आ रहा है। 4 तक मैंने एक्स्ट्रा सम किया है, एक्सरसाइज में जो एक बाकी बचा है वो भी कर दिया है। आपके पास नोटबुक में मैंने ये प्रिंट भेजा है ना, वो पीडीएफ, तो वो देख लेना। फिर भी हाँ कल सर। मिलते हैं। कल तो नहीं मिलेंगे ना, कल है नहीं, नहीं नहीं परसों है। सर परसों। हाँ हाँ, तो सर। परसों ओके। मिलेंगे। ओके, थैंक यू बाय सर। बाय बाय सर। बाय थैंक यू। बाय, थैंक यू।